Welcome back to my lecture series on my YouTube channel English Mania. I welcome all the new students who obtained admission in class 11th. So today in this video I am going to explain you complete syllabus of class 11th, and I am also going to explain you the question paper pattern of your 11th class. I congratulate all of you who obtained admission in 11th class and passed your 10th board examination with flying colors. So welcome to 11th class. So let's start this video lecture. This is your 11th class textbook. This is the cover page of your 11th class textbook. And we will directly move on to the contents of your 11th class syllabus. So yeah, here we are. So basically your syllabus is divided into 4 parts. First part is for prose, second is for poetry, third is for writing skills, and fourth is for the genre drama. So आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट जो है वो प्रोज राइटिंग का है, सेकंड जो है वो पोएम का है, थर्ड जो है राइटिंग स्किल्स का है, और फोर्थ जो है वो जॉनर ड्रामा, यानी आपको ड्रामा के बारे में यहाँ पे है. इसमें आपको 4.1 जो है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा बताया गया है, और 4.2 4.3 जो है यहाँ पे आपको ड्रामास दिए हुए हैं. इसी प्रकार से 12th में आपको यू विल हैव द जॉनर नॉवेल. 12th में आपको नॉवेल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रामा दिया हुआ है. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट योर syllabus, so first section we will see, first section is for prose writing. So prose writing, in prose writing section you have 6 contents, 6 lessons. There are 6 lessons in the first section that is based on prose. 6 lesson आपको है prose writing में. पहला है being neighborly, second है on to the summit, we reach the top, third है the call of the soil, fourth one is pillars of democracy, fifth one is Mrs. Adi's, and sixth one is Tiger Hill. But when I talk about the syllabus for 2020 to 21 means for this session, इस सेशन के सिलेबस की बात करें तो 25% सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस्ड. आपको पता होगा कि 25% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है. So before moving ahead, we will discuss the 25% reduction in your syllabus, and it is especially for the session 2020-21, and it is because of the coronavirus pandemic. Coronavirus pandemic के कारण आपका सिलेबस जो है सिर्फ 2020 से 21 के सेशन में 25% कम कर दिया गया है, यानी कुछ कंटेंट्स इसमें से हटा दिए गए हैं. तो अब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कौन कौन से प्रोज और पोइट्री के इसमें से निकाला गया है. तो देखिए 1.1 बीइंग नेबरली जो कि एक लेसन है वो हटा दिया गया है स्पेशली फॉर दिस सेशन 2020 to 21, और सेकेंड है 2.6 द प्लानर्स एंड इट इज़ अ पोएम. 2.6 द प्लानर्स इज़ अ पोएम. तो 1.1 लेसन और 2.6 द प्लानर्स जो पोएम है, these two things are omitted from the syllabus. Now coming back to the syllabus, first section which is for prose writing. So there are 6 lessons, but first lesson is omitted especially for this session 2020 to 21. पहला लेसन जो है वो हटा दिया गया है सिलेबस से सिर्फ इस सेशन के लिए. बाकी जो 5 लेसन्स हैं they are remain the same, वो अभी भी है. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Please keep in mind first lesson is removed from the syllabus especially for this session. Now moving on to the next section that is based on poetry. So you can see there are 6 poems. 6 poems यहाँ पे हैं, but as I have just told you, the poem 2.6 the planners is
removed from the syllabus. It has been omitted from the syllabus for this session. तो 2.6 जो पोएम है द प्लानर्स, ये आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए हटा दी गई है, आपको ये नहीं पढ़ना है। लेकिन जो 5 पोएम्स है वो आपको पढ़नी है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी पोएम्स हैं। तो 2.1 चेरी ट्री बाय रस्किन बॉन्ड, ये आपके सिलेबस में रहेंगी। द सोवर बाय विक्टर ह्यूगो। थर्ड वन इज़ देयर इज़ अनदर स्काई बाय एमिली डिकिंसन। फोर्थ वन इज़ अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 2.5 पोएम इज़ नोज वर्सेस आइज बाय विलियम कॉपर। तो ये 5 जो है आपके सिलेबस में है, तो ये रहेंगी, ये 5 पोएम्स आपको पढ़नी है। 2.6 हटा दिया गया है, ये पोएम ओमिट हो गई है। Now moving on to the next section, that is section 3, which is based on writing skills. 10 तक आपने देखा होगा लेटर राइटिंग आपको होती थी और जो छोटी छोटी राइटिंग स्किल्स होती थी, कभी स्टोरी राइटिंग होती थी। तो अब 11th में ये बिल्कुल न्यू आ गया है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा इसके पहले। तो अभी हम देखते हैं कि राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स हैं, और जो आपको 11th में राइटिंग स्किल्स हैं इसमें और ऐड ऑन होंगी 12th की राइटिंग स्किल्स, जो 12th में अलग से 6 राइटिंग स्किल्स हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में पहली राइटिंग स्किल जो 11th की है वो 6 कंटेंट्स और 6 कंटेंट्स 12th की, वो दोनों मिला के आपको आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सेक्शन 3 जो राइटिंग स्किल्स है उसमें कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स है। तो आप देख सकते हो कि 3.1 एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, 3.2 ब्लॉग राइटिंग, 3.3 ईमेल्स दैट इज़ ईमेल राइटिंग, 3.4 इंटरव्यू एंड 3.5 फिल्म रिव्यू, 3.6 द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। ये 6 कंटेंट्स जो है वो राइटिंग स्किल्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now moving on to the last section, that is genre drama, and as I have already told you, in 12th class you will have the genre novel. तो अभी हम देखते हैं 4.1 जो लेसन है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। उसके बाद में आता है 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून। ये जो है देखिए, अब 4.1 में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसमें आपको ड्रामा जो वर्ड कहाँ से आया है, ड्रामा की हिस्ट्री बताई गई है कि कितने टाइप के ड्रामाज होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन 4.2 जब हम देखते हैं द राइजिंग ऑफ द मून, तो ये जो है एक ड्रामा है जिसको लिखा गया है लेडी ग्रेगरी ने। उसके बाद में हम आते हैं 4.3 में, जो कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रामा, यानी एक बहुत बड़ा ड्रामा है लेकिन उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, कुछ एक पोर्शन उसका आपको दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो उसमें 2 आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो पहला है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि लिखा है बहुत ही फेमस प्ले राइट ने, विलियम शेक्सपियर। और 4.3 में ही जो बी है हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है एन एनिमी ऑफ द पीपल, इट इज़ रिटन बाय हेनरिक जॉन स्पेन। तो हेनरिक स्पेन ने लिखा है ये ड्रामा एन एनिमी ऑफ द पीपल। तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो पहला सेक्शन है ये आएगा आपको एग्ज़ाम में 34 मार्क्स का। तो ये जो मैंने आपको बता दिया 1.1 आप हटा दीजिए वहाँ से, बाकी के जो 5 लेसन्स बचते हैं तो ये लेसन्स जो आएंगे आपको एग्जामिनेशन में वो 34 मार्क्स के लिए आएंगे। मैं 80 मार्क्स के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सेक्शन 2 जब हम देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि 2.6 द प्लानर्स वाली पोएम आपको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। तो वो आपको बाकी की 5 पोएम में से कोई पोएम आएंगे और वो आएंगे आपको 14 मार्क्स के लिए। तो पहला देखिए बेटे जो है मार्क्स का वो प्रोज के लिए 34 है, पोएम के लिए 14 है, 14 और राइटिंग स्किल्स आपको आएंगी 16 मार्क्स के लिए 16। और लास्ट जो सेक्शन है जॉनर ड्रामा वो आपको आएगा 16 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हर यूनिट के पहले आपको इस टाइप का एक टेबल बना हुआ दिखेगा जिसमें क्या होगा, उस यूनिट में कितने कंटेंट्स है वो लिखे हुए रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे देखिए आप 1.1 बीइंग नेबरली, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है इस सेशन के लिए 2020 to 21 के लिए।
लेकिन आप देखोगे बाकी के भी लिखे हुए हैं, ऑन टू द समिट, द कॉल ऑफ द सॉइल, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मिसेस सादिस, टाइगर हिल, ये सारे आपके लेसन्स के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें लैंग्वेज स्टडी आप क्या करोगे, या पोएटिक डिवाइस पोएम्स में आते हैं, तो पोएटिक डिवाइस कौन से आप पढ़ोगे वो उसमें लिखा हुआ। जैसे कि आप पहले लेसन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी है लैंग्वेज स्टडी में, सेकेंड लेसन में सफिक्सेस पढ़ने हैं आपको क्या होता है, फिर थर्ड लेसन में सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से वो पढ़ने हैं। तो इस टाइप के जो पोएटिक डिवाइसेस और लैंग्वेज स्टडी है वो आपको करनी है। अब राइटिंग स्किल्स, तो पहले लेसन में राइटिंग स्किल आती है नरेशन, एक्सटेंशन ऑफ अ स्टोरी। सेकेंड लेसन में आती है लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग। फिर उसके बाद में थर्ड लेसन में आप पढ़ोगे प्रिपेयरिंग अ ब्लॉग, जो कि आपकी राइटिंग स्किल सेक्शन में भी दिया हुआ है। नोट मेकिंग, व्यू एंड काउंटर व्यू, अपील राइटिंग, ये थर्ड लेसन में पढ़ना है राइटिंग स्किल्स के। फोर्थ लेसन में आपको पढ़ना है ड्राफ्टिंग अ स्पीच, डायलॉग राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब आते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ दी हुई है और वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स, यानी ये लेसन आप पढ़ोगे या ये पोएम आप पढ़ोगे तो उससे आपको क्या वैल्यूज़ मिलेंगी आपके फ्यूचर के लिए। तो देखिए पहले लेसन में जब आप पढ़ोगे तो पहले लेसन में आपको मिलता है बीइंग फ्रेंडली और एम्पैथी, ये सब आपको रखनी चाहिए। सेकेंड लेसन से आपको वैल्यूज़ मिलती है करेज, परसिवरेंस, डेडिकेशन। थर्ड लेसन से जो वैल्यूज़ आपको मिलती है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, परसिवरेंस। फोर्थ लेसन से आपको मिलती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। फिफ्थ लेसन से मिलता है आपको जो वैल्यू है वो है फॉरगिवनेस, और लास्ट लेसन से आपको मिलता है पेट्रियाटिज्म वैल्यू है। ठीक है, तो हर यूनिट के पहले आपको ये एक टेबल मिल जाएगा और ये टेबल में आपको लिखा हुआ रहेगा जो यूनिट में टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स के बाद में लैंग्वेज स्टडी कौन सी करोगे आप, उसमें राइटिंग स्किल्स उस लेसन्स में या पोएम्स में कौन सी आती है, उस यूनिट में कौन सी आती है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट वर्क कौन सा आता है वो, और फिर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ और लाइफ स्किल्स आपको पढ़ने को मिलेंगी उसमें। So thank you so much for watching this video. I hope you have got whatever I have told you about your new syllabus of 11th class. If you are new to my channel, please press the bell icon and subscribe to my channel. Like, share and comment. Thank you so much.